कल से हरियाणा में बजट सेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस अभी तक बिना नेता विपक्ष के है, जिसका कारण पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को माना जा रहा है। कयास है कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं कुमारी सैलजा और सुरजेवाला भी पीछे नहीं। आपसी समझ न बन पाने के कारण कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष नहीं चुन पाई है। इसी के चलते बजट से पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई। बैठक में पार्टी सांसद कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित प्रदेश के अन्य नेता भी शामिल हुए। लगभग 3 घंटे से ज्यादा चली इस मुलाकात के बाद हरि प्रसाद ने कहा कि संगठन की मजबूती से लेकर संविधान बचाओ पदयात्रा तक ये चर्चा हुई। हालांकि हरि प्रसाद का कहना था कि इस बैठक में सीएलपी लीडर को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि विधायकों की तरफ से सीएलपी लीडर का मुद्दा निकला। हालांकि बड़े पैमाने पर विधायक पूर्व सीएम हुड्डा को ये जिम्मेदारी दिए जाने के पक्ष में है। कहा जा रहा है कि दलित विधायकों का कहना था कि अगर हुड्डा को जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वहां चौटाला परिवार एक बार फिर से जमीन मजबूत कर सकता है। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का कहना था कि ये हरियाणा की त्रासदी है कि हम जीत रहे थे और हार गए। उन्होंने कहा कि हम लोग हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, इसके लिए काम भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। इसके पीछे चाहे जो भी कारण हो, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक इस बारे में थी कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और बेलगावी में सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यहाँ भी कुमारी सैलजा नेता विपक्ष के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचती दिखाई दी। Absolutely, this is the tragedy of Haryana. We were winning and we lost that, and the expectations were the other side of the spectrum, and yet this is most unfortunate, not just for few people but for I would say for the entire party and for the entire state of Haryana, because then it also had repercussions. And today what people expected, actually, people were expecting and working towards a change in regime in Haryana, and unfortunately that could not be, whatever the reasons might be, whether they were internal or external. But was it discussed in the meeting? Discussed today? No. This is only for organization, how to strengthen and how to carry forward the programs which have been given by the CWC in Belgavi, and also what was decided in the meeting with the Congress President and LOP Lok Sabha with the General Secretaries and in charges. It's to carry those programs forward. So you have been the president of the party in the state, but yet almost more than 10 years, but there are no district Congress committees in the state. It is the third consecutive term when the party is in the opposition. Don't you think that this should be addressed, and there should be a change in the PCC, and the leadership should own the responsibility of the result of the as far as changes are concerned, I think it's the High Command which has to decide as to what changes need to be effected at what point. That is for them to decide. But certainly, all of us feel that there has been something majorly lacking in our organization for the past so many years, that which has landed us in this. One of the factors, definitely, one of the factors, not all, there are other factors as well, but one of the factors which has led to not winning the state. There should be a district Congress committee. There are Absolutely. Whether it's district, whether it's blocks, whether it's mandals, and obviously more than anything else, the PCC. We have nothing. We hear of these today. I believe there was this committee was steering committee. We have no idea when this was formed. वहीं हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन से राहुल गांधी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। काफी दिनों तक उन्होंने हरियाणा की राजनीतिक मसलों से दूरी भी बनाई, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का निरंतर नुकसान हो रहा है, उसे देखकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से हरियाणा के कांग्रेसियों को एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है,
लेकिन हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और टिकटों का सही ढंग से वितरण न होना भी कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस इसलिए भी प्रभावित हो रही है क्योंकि यहाँ पिछले 11 साल से संगठन नहीं बन पाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन भी अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है। शहरी निकाय चुनावों की बात करें तो कांग्रेस अपने हक में अच्छे नतीजे आने की आस में बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस ने शहरी निकाय चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से लड़ा है। कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति पर मंथन के लिए हो सकता है ये सभा बुलाई गई हो, लेकिन नेता विपक्ष कब चुना जाएगा इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। कल बजट में नेता विपक्ष न होने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन लगता है निकाय चुनावों की तरह इस मुद्दे पर भी कांग्रेस इसे ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही।